زرد سے فلٹر ہو کے نیچے آتی ہیں وہ ایک خاص پروپورشن سے نیچے آتی ہیں، اور وہ خاص پروپورشن سے نیچے آتی ہیں تو کچھ کو واپس جانا ہوتا ہے، جانا چاہیے. وہ جب جان یہ آ رہی ہے زیادہ پروپورشن سے کم آ رہی ہے زمین سے ٹکرائی، یہ کیوں؟ زمین کو جو درجہ حرارت ریکوائرڈ ہے، مثال کے طور پر پچھلے سال آم کی جو فصل تھی وہ 20% کم ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی سر؟ ابھی میں نے بتا دیا اس کے دن، آپ غور کریں اس میں جواب چھپا ہوگا. تناسب جو آپ بات کرتے ہیں یہ خاص پیٹرن ٹیمپریچر اور انوائرمنٹ ایگزیکٹ بتائیں قریب پہنچ گئے. نہیں ہیٹ کی تو وجہ سے، لیکن کیسے ڈکریز ہوا تھا. نہیں اب ہم کہیں اور چلیں. اب کیونکہ ہمیں ٹی بریک کرنی ہے 30 ہو رہی ہے، میں کوئکلی کرتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ہم جو درخت ہوتا ہے نا آم کا یا کوئی بھی فصل، اس کو ہر موسم میں ہر ویدر میں ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے، اور اس کو خاص مئی میں، اپریل میں، اگست میں فل ہیٹ چاہیے، تاکہ وہ جیسا اب کھانا بن جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ تیز کر کے کہتے ہیں 5 منٹ بن. تو وہ جو ہیٹ وہ جو جون میں چاہیے تھی وہ اپریل میں آ گئی. تو وہ جو تھا اس کا سائز بھی بڑا نہیں ہوا اور وہ چھوٹے سائز میں پک گیا، یعنی وہ پھر اس کا جو پکنا تھا وہ اس میں ریکوائرڈ رس بھی نہیں آیا، سائز بھی چھوٹا ہو گیا. تو آپ کو 20% ایوریج سالانہ آپ کو وہ کم ملی. گورنمنٹ آفیشلس بھی جو انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور یقیناً ہم ان سے بھی تھوڑا بہت سیکھیں گے. اور آپ لوگ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچنس ہوں گے کلائمیٹ چینج کو لے کے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈرائی بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو سورج کی شعاعیں ویزیبل اور الٹرا وائلٹ ہیں وہ شاپر بیگ سے گزر کے تو وہ آئی آر میں بدل جاتی ہیں، اور وہ اس کے اندر کلر فارمنگ آپ نے دیکھا کسی نے کلر فارمنگ، وہ کہتے تھے کہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں ہماری گرینری زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ادروائز گرین ہاؤس ایفیکٹ جو کہ اس کے اندر گلوبل وارمنگ مین فینومینا ہے اس کا فائدہ ہے. لیکن یہ اگر اب یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم لوگ ہر لوگ سولوشن کو بھول جائیں گے. کلائمیٹ کو چینج کو آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ کلائمیٹ آپ بچ نہیں سکتے. گھر میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، بازار میں ہوں، ہر جگہ پہ کلائمیٹ آپ کا پیچھا کرے گا. اور یہ کلائمیٹ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ سورج کی کوئی قصور نہیں ہے، ٹوٹلی سورج انوسنٹ ہے. یہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز جو ہماری ہیں اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے. اس کا سولوشن، اس کی میٹیگیشن، اس کی اڈاپٹیشن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی میں تھوڑا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سورج سے ہمیں ڈائریکٹ ہیٹ نہیں آتی. گراؤنڈ لیول پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ، کلاؤڈ پہ 0، نیشنل فلائٹ پہ تقریباً -15 اور انٹرنیشنل فلائٹ پہ -30، اور اوپر چلے جائیں 20 کلومیٹر تو -60، 90 کلومیٹر پر چلے تو -85. گرین ہاؤس گیسز کے نتیجے سے ٹیمپریچر بڑھے جس سے ایکولوجیکل اسٹیبلٹی کمپرومائز ہوتی ہے. تقریباً 30 سال پہلے 1990 almost 30 years ago یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج سائن ہوا تھا. یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ تھا موسمی تبدیلی کا. اس میں 3-4 اہم شق. سب سے پہلے دنیا میں گرین ہاؤس گیسز کی پیداوار کو کسی نہ کسی طرح قابو کیا جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں، اکنامکلی ڈیولپڈ ممالک جنہوں نے صنعتی انقلاب سے آج تک گرین ہاؤس گیسز کی ہی بنیاد پہ اپنی اکانومیز کو چڑھایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز یا ان کا استعمال کم کریں. یعنی کہ کوئلے سے اٹھ کے رینیوبل بجلی پہ آ جائیں، الیکٹرک ویہیکلس پہ آ جائیں، اس طرح کے کام. اور باقی جو چھوٹے ممالک ہیں جن پہ اثر پڑے گا موسمی تبدیلی کا، ان پہ فرض پڑتا ہے کہ وہ موسمی تبدیلی کی تیاری کریں. اور اس تیاری کے لیے تیسرا اہم پہلو جو تھا UNFCCC کا وہ یہ تھا کہ امیر ممالک سے غریب ممالک نہ صرف ٹیکنالوجی آئے گی مگر پیسے بھی آئیں گے. فائنانس، کلائمیٹ فائنانس جسے کہتے ہیں، because ان غریب ممالک کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جن سے ہم ان موسمی تبدیلی کی مصیبتوں کی تیاری کر سکیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 2022 میں جو بارش پڑی تھی بلوچستان میں اور سندھ کے اندر، جہاں 100 کلومیٹر کی جھیل پیدا ہو گئی تھی چند ہفتوں کے اندر. انٹیریئر کالج کی اسٹڈی ہے جو کہ
बारिशों की जो शिद्दत थी कम से कम 50% शिद्दत उन बारिशों की इस वजह से थी जो कि दुनिया का टेम्परेचर जो है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। 13 करोड़ से अबव की आबादी है और इस मुल्क ने इतना कुछ दिया, क्या हम इस मुल्क को एक दरख्त नहीं दे सकते अपनी इंफरादी हैसियत में? इस शनाख्ती कार्ड के बदले, इस पासपोर्ट के बदले, इस जमीन के बदले सिर्फ जिंदगी भर में ये दरख्त नहीं दे सकते? तो हम किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमने, जो सीएम पंजाब ने एक ऐलान जंग किया है माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ, जब तक आप उनका बाजू नहीं बनेंगे, जब तक ये कैमरे के जरिए मोटिवेशन नहीं जाएगी, जब तक आपके कलम के जरिए शऊर उजागर नहीं किया जा सकेगा। प्लीज ताकत बनिए, माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कीजिए। और मैं आखिर में दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ LGF का कि आपने वो फोरम पे हम सबको इकट्ठा किया जो कि वक्त की सबसे अहम जरूरत है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद और सदाबाद रहे मेरा पंजाब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त फ्लैटिस होटल में मौजूद है, जहाँ पर बहुत से इकदाम, बहुत सी पॉलिसियों के हवाले से आज इकदाम किए गए। एनवायरनमेंट हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही दबंग पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पे पूरे पंजाब में काम कर रही है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब के विजन को आगे बढ़ाने के लिए लातदाद इनकलाबी और मरकज़ी इकदाम इन्होंने किए। आज हम इनसे बात करेंगे न्यूज़ 24 के हवाले से आया वो क्या कहती है और इनका क्या विजन है और नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से वो क्या करना चाहती है। जबकि 15 साल गुजर जाने के बावजूद लॉ इन्वायरमेंट भी मौजूद नहीं, पॉलिसी बना दी गई। आया कौन सा ऐसा कानून और आइन है जिनसे हम बात करें? जी मैडम। जी मैडम, 15 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक इन्वायरमेंट लॉ नहीं मुकम्मल हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपकी सारी बातें मैं देख रही थी। देखिए, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है और जो आज नहीं हुआ इंशाल्लाह कल आपको नज़र आएगा। लेकिन मैं उसमें आपको बताऊं, मैं अक्सर ये कहती हूं कि शायद आज से पहले क्लाइमेट चेंज के उस तरह से इफ़ेक्ट भी नहीं थे, हम उतने मुतासिर भी नहीं थे आज से पहले। लेकिन आज पूरी दुनिया और स्पेशल पाकिस्तान जो है और पंजाब जो है वो स्मोक का भी शिकार है। हमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम को भी देखना है। हमने भट्टों को ज़िगज़ैग हमने कर चुके हुए हैं। हम प्लास्टिक, एंटी प्लास्टिक कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं। हम वाटर वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पे काम कर रहे हैं। हम उस पे एमिशन कंट्रोल को देख रहे हैं। हमने EPA फोर्स का क़याम किया, जो कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ का इंदिया है कि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट का डीप कंसर्न और बिल्कुल तवज्जो और अवलीन तरजीह में जो है वो शामिल है माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा। माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा जो है वो अवलीन तरजीह में शामिल है। दूसरी बात ये कि आप अगर देखें तो 75 साल की हिस्ट्री में कभी कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई थी जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी। आपकी CM इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहली CM है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी। स्मोक मिटिगेशन प्लान पे काम हो रहा है। इस वक्त आपके 23 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के होते हुए हम प्लांटेशन की तरफ है, हम एंटी स्मोक ने EPA फोर्स का क़याम किया है। उन फोर्स को ना सिर्फ हमने उनकी काबिलियत, उनकी ज़हनी, उनकी जिस्मानी काबिलियत के मुताबिक उन्हें फ़ोर्स भी क्लियर किया, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की है। और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इस वक्त की CM का भरपूर तवज्जो जो है वो माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा, वो फ़ज़ाई आलूदगी का ख़ात्मा, वो आबी आलूदगी का ख़ात्मा, वो प्लास्टिक से पाक पंजाब चाहती हैं। इसमें हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप तमाम मीडिया का किरदार, आपके तवस्सुल से देखने वालों का किरदार सामने ना आए। मेरी आपसे अपील है कि हर फर्द एक पौधे की कैंपेन को चलाइए, प्लांटेशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी जैसे
एक जंग के माहौल से निकल के पुरअमन तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकें, तो अब प्लांटेशन कीजिए, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए और हर वो एक्टिविटी जो इको फ्रेंडली नहीं है उसे रोकने में हमारी मदद करें। जनूबी पंजाब बड़ा मुफस्सल जो है उस हवाले से आप कहेंगे कि ईद के असरात जो है वो जनूबी पंजाब तक कितनी हद तक जो है वो उसको देखें, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है पंजाब की, वो पूरे पंजाब के लिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो पंजाब से दूसरे हिस्से के लिए नहीं है। इवन हमने जो फोर्स बनाई है वो भी पूरे पंजाब के लिए है। तो हम पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पंजाब को बेहतर आप इन्वायरमेंट में देखेंगे। हमारी जो है वो वज़ीर आला के बारे में बात की है, इसमें कोई जो है वो शक की बात नहीं है कि वो किस तरीके से जो पूरे पंजाब को वो माहौल दोस्त बनाना चाह रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो किस तरीके से इसके लिए इक़दामात कर रही हैं, वो हम सब ही उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हमारी वज़ीर आला साहिबा इस पर काम कर रही हैं, हम सब अदारे भी मिलकर और आम लोग भी सब मिलकर अगर हम उनके साथ चलेंगे तो इसको बहुत बेहतर तरीके से हम सरअंजाम दे सकते। तो पॉलिसी से बढ़कर हमें यानी पॉलिसी सोचना होता है, अब सोचने से बढ़कर हमें कुछ करना है और करने के लिए हमारे पास एज ए शहरी हमारे पास मौक़े हैं, इदारे के तौर पर हमारे पास मौक़े हैं और हुकूमती तौर पर हमारे मौक़े हैं। तो हर बंदे को अपनी अपनी सतह पर काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके असरात हर शख्स पर ज़ाती तौर पर, ग्रोही तौर पर और कौमी तौर पर आ रहे हैं। कल का जो लाहौर का तूफ़ान था वो बेनज़ीर था, आपने देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद तूफ़ान इसी तरह के आएँ और हम अपने बच्चों के लिए या उनके भी बच्चों के लिए ऐसा लाहौर छोड़ के जाएँ, तो जो हम काम कर रहे हैं यानी कि ज़रख़े ज़मीनों को ख़त्म कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, धड़ाधड़ सोसाइटियाँ बनाए चले जा रहे हैं और धुआं फेंकने वाली फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, मशीनें, इनके ऊपर अगर हमने रोकथाम नहीं की यानी इदारों ने अपना काम शुरू नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये थी कौल लियाकत साहबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पे पूरे पंजाब में बड़ी ही अहम ज़िम्मेदारियों से सरअंजाम दे रही थी। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।